سانحہ ساہیوال کا دلخراش واقعہ۔ دن کی روشنی میں بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیاں مار دی گئیں۔ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، درخواست گزار کے وکیل کا موقف۔ عدالت ڈائریکٹ جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم نہیں دے سکتی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ تفتیشی رپورٹ پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی، 2 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم، سماعت 1 بجے تک کے لیے ملتوی۔ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ کی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری آمد۔ چیف جسٹس بننے کے بعد جسٹس آصف سعید کھوسہ پہلی مرتبہ لاہور رجسٹری میں اہم کیسز کی سماعت کریں گے۔ ادھر قتل کے ملزم کی درخواست ضمانت کا کیس، آر پی او فیصل آباد غلام محمود سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پیش۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سروسز ہسپتال میں زیر علاج۔ پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز صادق کی سربراہی میں میڈیکل بورڈ کا اجلاس۔ میاں نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی موجود۔ میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لیا جائے گا۔ ادھر لیگی کارکنان کا سروسز ہسپتال کے باہر کیمپ، نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا۔ زرعی سائنسدانوں کی ترقیاں، محکمہ زراعت کی کالی بھیڑوں کی نسل۔ حکومت نے 1081 افراد کے اپ گریڈیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ذرائع کے مطابق ڈی جی زراعت ڈاکٹر عابد محمود اپنی سیٹ کی خاطر ترقیوں میں رکاوٹ بن گئے۔ سیکرٹری زراعت واصف خورشید بھی ملی بھگت میں شامل۔ معروف برانڈ ریڈ بل نے نئی لیبلنگ متعارف کرا دی۔ انرجی ڈرنک کی جگہ اسٹیمولنٹ ڈرنک تحریر۔ 12 سال سے کم اور حاملہ خواتین کے لیے استعمال ممنوع قرار۔ نئی لیبلنگ والی پروڈکٹ فوڈ اتھارٹی کو جمع، پی ایف اے قوانین کے مطابق منظوری دے گا۔ آئی جی آفس میں ترقی پانے والے افسران کی تقریب۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے ترقی پانے والے افسران کو بیجز لگائے۔ 2 ایڈیشنل آئی جیز انعام غنی اور نعیم اشرف بھروگا کو بھی بیجز لگائے گئے۔ 5 ڈی آئی جیز کی ترقی اسمبلی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی۔ ترقی پانے والوں میں احسن یونس، عطا محمد، زبیر دریشک، گوہر مشتاق بھٹا اور رائے بابر سعید شامل۔ شہر لاہور کو محفوظ بنانے کا منصوبہ، سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے جنوری کے اعداد و شمار جاری۔ قوانین کی خلاف ورزی پر 28,717 کیسز رپورٹ، جبکہ 2,992 گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹ نہ ہونے پر ایکشن لیا گیا۔ ڈی سی لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ ڈی جی والٹ سٹی کامران لاشاری کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے امتحانات کا آغاز ہو گیا۔ لاہور میں 80,000 سے زائد بچے 5ویں جماعت کا امتحان دیں گے۔ مرغی کے بعد سبزی بھی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ سرکاری نرخ نامے نے ہوش اڑا دیے۔ ایک روز میں ٹماٹر کی قیمت میں 12 روپے اضافہ، پیاز 18 روپے جبکہ آلو 8 روپے مہنگا ہو گیا۔ پنجاب پولیس کے شیر جوان محافظ نہ رہے، بادامی باغ ناکے سے لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون کا اے ایس آئی ذوالفقار کے خلاف بیان قلم بند۔ عدالت کا ڈی آئی جی کرپشن کو فوری کارروائی کا حکم۔ 16 سالہ گھریلو ملازمہ کا مالکن کے ہاتھوں قتل۔ ملزمہ ماروخ، آئمہ اور ریحانہ کی درخواست ضمانت خارج۔ عدالت نے 6 فروری کو اقبال ٹاؤن پولیس سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ شوہر نے مارا پیٹا اور گھر سے نکالا، 3 سالہ بچہ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ دکھیاری ماں عدالت جا پہنچی۔ عدالت نے بچہ باپ سے لے کر ماں کے حوالے کر دیا۔ طیاروں کی کمی اور فنی خرابیاں، 16 پروازیں متاثر۔ قومی ایئر لائن کی 10 سے زائد ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازیں منسوخ، جبکہ متعدد تاخیر کا شکار۔ ادھر مختلف شہروں سے آنے والی 5 ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار۔ لاری اڈا پر بنے پبلک ٹوائلٹس پر تالے، تعمیر شدہ ٹوائلٹ تاحال غیر فعال، مسافر پریشان، جبکہ ٹوائلٹ غیر فعال ہونے سے سڑکوں پر گندگی کے ڈھیر۔
ताफुन फैलने से राहगीर परेशान। कॉलेज रोड टाउनशिप नाला मौत का गड्ढा बन गया। आए दिन हादसात से शहरी खौफजदा। ताजिर और शहरियों का हुकूमत और इंतजामिया से नाले को ढांपने का मुतालिबा। PP 168 का इलाका मुस्तफा कॉलोनी फील्ड डिपो में तब्दील। सिविल सिस्टम तबाह होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। ताफून के बायस सांस लेना भी मुहाल हो गया। शहरियों का हुकाम से नोटिस का मुतालबा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। साबिक सदर PTI लाहौर शबीर सयाग के वालिद की नमाज जनाजा अदा। MPA नजीर चौहान, एजाज चौधरी, खुरम नवाज किंडापुर, मलिक अमानत वकार अहमद मियां और मलिक फारूक हफीज समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। कनेट कॉलेज में कश्मीर सेमिनार। तलबा समेत असातिज़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। तलबा और असातिज़ा ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती भी किया। डायरेक्टर जनरल ब्लॉक डॉक्टर सुगना सदफ की 8 सालगिरह दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगाम। और सूरज मियां के गुस्से में तेजी आ गई। सर्दी की शिद्दत कम हो गई। आज कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हैं या नहीं? मेडिकल बोर्ड को नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मौसूल हो गई हैं। इसी तरह नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड में मौजूद डॉक्टर्स ने भी सर जोड़ लिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड का इजलास भी जारी है और इसी तरह इजलास में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लिया जा रहा है। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान सर्विसेज अस्पताल पहुंच गए। अभी ताजा तरीन सूरत हाल क्या है नवाज शरीफ की सेहत की, जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम। मैं सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि हफ्ते के रोज़ कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, उनका तिबी इलाज जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल में अभी आपको बताते चले कि मेडिकल बोर्ड जो प्रिंसिपल सिम्स प्रोफेसर डॉक्टर महमूद की सरबराही में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज कर रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स जो अब तक आई हैं उस हवाले से जो है वो तिबी मुआयना के हवाले से जायज़ा ले रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मज़ीद इलाज के हवाले से क्या कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं। इसी हवाले से बताते चले कि अब तक जो है वो कल जो टेस्ट रिपोर्ट्स आई थी उन रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जिगर में सोजिश और गुर्दों में पत्थरी का भी इंकशाफ हुआ था। इस वक्त आपको बताते चले कि मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर डॉक्टर महमूद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी जो हैं वो इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार अयाज सादिक भी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंच चुके हैं। जी ठीक है उमर असलम, ये भी बताइएगा मेडिकल बोर्ड जो है वो रिपोर्ट्स का जायजा ले रहा है, तो क्या कोई ऐसे इम्कानात नजर आ रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को PIC रेफर किया जाएगा या किसी दूसरे हॉस्पिटल उन्हें रेफर किया जाएगा? वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की डॉक्टर्स जो हैं वो ऑन कॉल पर हैं इस वक्त कि अगर यहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड वो ज़रूरत समझेगा इस हवाले से कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स देखने की भी ज़रूरत है, तो वो डॉक्टर्स ऑन कॉल पर अभी मौजूद हैं। यानी डॉक्टर्स फ़ौरन जो है वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से आकर साबिक वज़ीर आज़म का यहाँ पर तिबी मुआयना करेंगे। इस वक्त जो मेडिकल बोर्ड है वो इस वक्त मौजूदा तिबी सहूलियात के हवाले से जायज़ा ले रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आई हैं उस हवाले से वो जायज़ा लिया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ को कितनी देर अस्पताल में रखा जाए। जी ठीक है उमर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे रिपोर्ट्स जो हैं वो मेडिकल बोर्ड ने देख ली हैं, तो क्या साबिक वज़ीर आज़म की सेहत को देखते हुए क्या उनके इलाज मुआलजे में कोई तब्दीली लाने का प्लान किया गया है?
जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मेडिकल बोर्ड इस वक्त बैठा हुआ है वो अब फैसला करेगा कि उनको जो है वो तिब्बी सहूलियात के हवाले से कौन सी अद्वियात दी जाएँ, उनके इलाज मुआलजे के हवाले से क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए। और इसी सिलसिले में बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान, वो भी अब से कुछ देर कबल जो है वो तकरीबन यहाँ पर सर्विसेज अस्पताल में पहुँचे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं उससे उनका जायज़ा लिया जा रहा है सेहत के हवाले से कि उनको कौन सी अद्वियात दी जानी चाहिए, और मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट्स भी देखी जा रही हैं। जी ठीक है, उमर असलम ये भी बताएगा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की आयादत के लिए आज कौन कौन सी शख्सियात पहुंची हैं और कौन कौन सी शख्सियात की आमद मुतवक्के है। जी बिल्कुल, इस वक्त बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक पहुँच चुके हैं। सरदार ज़राए के मुताबिक पहले सरदार एयाज सादिक ने मुलाकात करने के लिए जब 11 बजे आना था, ताहम उन्हें इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन इजाज़त मिलने के बाद इस वक्त जो है वो सरदार एयाज सादिक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात और उनकी तीमारदारी के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुँच चुके हैं। जी ठीक है, उमर असलम आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज मुआलजे के हवाले से आप हमें बता रहे थे। आपको एक बार बताते चले, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज मुआलजा जारी है। मेडिकल बोर्ड जो है वो तमाम तर रिपोर्ट्स देख रहा है, आया रिपोर्ट्स क्लियर हैं या नहीं, मेडिकल बोर्ड इसका फैसला करेगा। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज सादिक की ज़ेर सदारत 1.5 घंटा तक इजलास हुआ है। और अभी आपको बताएं कि प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज जो कि मेडिकल बोर्ड के सरबराह हैं, इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है मीडिया से। क्या कहना था उनका, ये आपको दिखाते हैं। अभी टेस्ट के लिए अगर हमें कोई हार्ट से रिलेटेड टेस्ट की ज़रूरत होगी तो वो उसके लिए हमने आज रिक्वेस्ट की है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर साहिबान से कि वो आके विज़िट करें, और अगर वो मुनासिब समझे तो वो टेस्ट तजवीज़ करेंगे, क्योंकि हम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, इसलिए फ़िलहाल हम इनको एंजियोग्राफी तजवीज़ नहीं। अभी टेस्ट के लिए अगर हमें कोई हार्ट से रिलेटेड टेस्ट की ज़रूरत होगी तो वो उसके लिए हमने आज रिक्वेस्ट की है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर साहिबान से कि वो आके विज़िट करें, और अगर वो मुनासिब समझे तो वो टेस्ट तजवीज़ करेंगे, क्योंकि हम कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, इसलिए फ़िलहाल हम इनको एंजियोग्राफी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी अलामात हैं उनको हमने देख लिया है, और उसके हिसाब से उनको दवाइयाँ भी तजवीज़ की, और मज़ीद जो उनकी जो भी उनके लिए कुछ जो टेस्ट दरकार हैं और जो भी हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। देखिए डॉक्टर्स कैसे एक्ट करते हैं, डॉक्टर्स वुड एक्ट अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। पहले हम एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जब हमारे सामने आती है तो उस इन्फॉर्मेशन की। डॉक्टर महमूद अयाज का क्या कहना था, मुलाहिजा कर रहे थे। उनका कहना है कि मज़ीद टेस्ट करवाने के बाद मेडिकल बोर्ड दोबारा रिपोर्ट्स का जायजा लेगा।